Namaskar students, we discussed on the chapter 3rd population composition. In this chapter we discussed about the various composition of the population or various group of the population like the male, female, sex population, like the age structure, the population composition on the basis of different age groups. There are 3 age groups: 0 to 14 year youth, 15 to 59 year working population, and above 59 years is the elder population or aging population. The other composition of population on the basis of rural and urban population composition. This composition is divided on the basis of residence. Some people are lives in rural areas and some people are lives in the urban areas. So it is very necessary to study the population on the rural and urban basis, because the livelihood and social conditions are differ from each other. इट मीन्स कि रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, लाइवलीहुड के तरीके और सोशल कंडीशंस हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहने वालों से डिफरेंट हैं. रूरल एरियाज़ में उन्हें कुछ डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ता है, जबकि अर्बन एरियाज़ में ऐसे चांसेस कम हैं. तो डिवीज़न बेस्ड ऑन रेजिडेंस, इट मीन्स इन रूरल एरियाज़, इन villages, the people lives in villages are belong to rural areas, and in cities or towns are called as the urban areas. That depends on the basis of activities, employment, economic activities. Generally in rural areas people are engaged in primary activity like agriculture, fishing, hunting, gathering, lumbering, mining, quarrying, etc. And in urban areas people are engaged in non-primary activity. They are engaged in secondary and tertiary activities. More than population in engaged in tertiary and secondary activities in urban areas, cities or towns. अगर बात करें नंबर ऑफ पीपल और पॉपुलेशन की, तो इन रूरल एरियाज द पॉपुलेशन नॉट मोर देन 2500 पीपल, और द अर्बन एरियाज मोर देन 25,000. limitation is for the rural areas and 5,000 for the urban areas. in simple words अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज, विलेजेस वो होंगे जहाँ की पॉपुलेशन 2500 से कम होती है, और अर्बन एरियाज वो होंगे जहाँ की पॉपुलेशन 5000 से अधिक होती है. ये क्राइटेरिया इंडिया में है कि इंडिया में अर्बन एरियाज के लिए 5000 की लिमिटेशंस है. पॉपुलेशन 5000 हो गया, इट मीन्स दैट इज कन्वर्ट इनटू टाउन, नगर पालिका बोर्ड और सिटीज. लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेराई इन रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज. विलेजेस में गवर्नमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा फोकस करना होता है rather than the urban areas, क्योंकि रूरल एरियाज the more than 60% population in India lives in the rural areas. So the development of villages is the development of India. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 1947 में जब कंट्री को इंडिपेंडेंसी मिली थी, उस समय ये कहा था कि भारत गाँव का देश है और यह गाँव का विकास करने का मतलब है भारत का विकास करना. तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज वेराई फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और फ्रॉम विलेज टू विलेज. एंड रूरल एरियाज people are engaged in primary activities like the fishing, quarrying, animal husbandry, dairy farming, etc. And urban areas non-primary activities like the industrial workers, construction workers, mill workers और फैक्ट्री वर्कर्स
etc. There are lot of job opportunities in urban areas rather than the rural areas. Canada and Finland. Finland is the European country and Canada is the USA country. तो Canada and Finland have the opposite situation for the male or female population in Zimbabwe and Nepal. तो ये बात थी कि रूरल बेसिस पर और अर्बन रेजिडेंस पर पॉपुलेशन का कंपोजिशन. अब यहाँ पर भी मेल कंपोजिशन, मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन में भी वेरिएशन है. सेक्स रेशियो जो है उसकी तरफ हम देखें तो रूरल एरियाज में सेक्स रेशियो जो है वो वुमेन्स के फेवर में है, अर्बन एरियाज में मेंस के फेवर में है, वुमेन्स के अगेंस्ट है. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एक तो माइग्रेशन. रूरल एरियाज, द पीपल आर माइग्रेंट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ job opportunities, in search of better education, in search of medical facilities and lot of other reasons. Luxurious life of the urban areas attract the people towards the shifting from rural to urban areas. इसके अलावा जैसे हम बात करें कि रूरल एरियाज में वुमेन्स का जो रेशियो है, सेक्स रेशियो, वो अधिक है. इसके पीछे रीजन ये है कि रूरल एरियाज में वुमेन्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी ना होने की वजह से और सूटेबल एनवायरनमेंट या एनवायरमेंटल, सोशल एनवायरमेंटल सूटेबल ना होने की वजह से रूरल एरियाज की वुमेन्स माइग्रेट होकर के सिटीज़ की तरफ आना नहीं चाहती. इसकी वजह से वहाँ पर जो पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में, फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है और मेल पॉपुलेशन फॉर बेटर एजुकेशन और फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी वो अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट होते हैं. But that is the different in डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हैं उन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में वुमेन्स इन्वॉल्व कम है, मैन वुमेन इन्वॉल्व ज़्यादा है. उसका रीज़न ये है कि इन डेवलप्ड कंट्रीज एग्रीकल्चर इज़ मशीन बेस्ड और मशीन बेस्ड जहाँ पर होती है वहाँ मशीन पर ज़्यादातर मेल पॉपुलेशन काम करती है. और इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज जहाँ एग्रीकल्चर मशीन बेस्ड है, वहाँ के लोग जो हैं वहाँ रूरल एरियाज़ में भी मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, फीमेल पॉपुलेशन वहाँ पर कम है. Students, our next topic is literacy. Literacy, the Hindi meaning is the साक्षरता. साक्षरता in simple words पढ़ा लिखा. But in India, according to census 2001, the definition given to a literate person, if any person above the age 7 years and he is or she is able to read, write and understand any one language is called as a literate person or is considered as a literate person. But according to UNO, United Nations Organization, a person who has completed the age 15 years and he or she is able to read, write and understand any one language is called a literate person or considered as a literate person. अर्थात जिसकी उम्र 7 साल हो गई और वह किसी एक भाषा को, लैंग्वेज को पढ़ना, लिखना,
जानता है और समझता है वह इंडिया के अकॉर्डिंग लिटरेट पर्सन है, और यूएनओ के अकॉर्डिंग उसकी एज अगर 15 ईयर कंप्लीट है एंड वो पढ़ना लिखना जानता है और किसी एक लैंग्वेज को समझता भी है, समझ करके उसे पढ़ लिख सकता है, दैट इज कंसिडर्ड एज ए लिटरेट पर्सन। It is fairly a reliable index to understand of social economic development of any country, any area, particular area। अर्थात उस लिटरेसी रेट से ही पता चलता है कि कोई एरिया कितना सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर चुका है या किस लेवल पर वो है। तो लिटरेसी रेट किस पर फाइंड करते हैं? लिटरेट पर्सन ओवर पर 100 पीपल, उसको परसेंटेज में हम काउंट करते हैं। तो पहला फैक्टर है अर्बनाइजेशन, अर्थात अर्बन एरियाज में लिटरेसी रेट वो ज़्यादा होगी। अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज़ होती हैं और जहाँ लिटरेट पर्सन ज़्यादा हैं धीरे धीरे वो भी अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जिन एरियाज में जो अर्बन एरियाज हैं एजुकेटेड लोग वहाँ हैं, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हाई लेवल पर होगा। सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स, वहाँ की फीमेल्स का सोशल स्टेटस जिस लेवल पर है वो डिपेंड करता है कि वहाँ की लिटरेसी रेट कैसी होगी, एजुकेशन का स्टेटस वहाँ कैसा होगा। या यूँ कहें कि जहाँ पर एजुकेशन अच्छी होगी, लिटरेसी रेट अच्छी होगी, वहाँ फीमेल का सोशल स्टेटस है वो भी अच्छा होगा। एजुकेशन फैसिलिटीज़, जिस एरियाज़ में एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, सीधी सी बात है, सिंपली वहाँ लिटरेसी रेट भी ज़्यादा होगी। और गवर्नमेंट पॉलिसीज इज ऑल्सो अफेक्ट द लिटरेसी रेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन भारत की बात करें तो यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान चला था और उस सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनौपचारिक केंद्र स्टार्ट किए गए थे ताकि उन लोगों को दिन की बजाय रात में पढ़ाया जाए, उनके घरों के पास पढ़ाया जाए कि उनके पास कन्वेंस चार्जेस नहीं होते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है, या वो दूर जाकर के एजुकेशन लेने में अनएबल है। तो ऐसे लोगों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केंद्र भी चलाए गए। फिर राजीव गांधी पाठशालाएं चलाई गई ताकि लिटरेसी रेट को और इंक्रीज किया जाए। तो लिटरेसी रेट पर ही डिपेंड करता है कि उस एरिया का, उस कंट्री का जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसा है। जनरली हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जहाँ की लिटरेसी रेट ज़्यादा है, अच्छी है, वहाँ अदर फैसिलिटीज़ जो हैं, सोशल स्टैंडर्ड है पीपल्स का और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो भी हाई लेवल पर होता है। और जहाँ लिटरेसी रेट नहीं है वहाँ पर वो स्टैंडर्ड लो लेवल का होता है। अब दोनों बातें हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मीन्स अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो सोशल स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, अगर सोशल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो एजुकेशन भी, वहाँ की लिटरेसी रेट भी लोअर होगी। इसलिए कहा गया है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना होगा।